Look at for question number 32. If omega is complex cube root of unity, and matrix A is given, matrix omega 0 0 0 omega square 0 0 0 omega cube, and we are going to find its inverse. इसका inverse हमें find out करना है. तो while taking the inverse of diagonal matrix, you must have to make a reciprocal of the diagonal elements here, because we know that if diagonal matrix ABC is given, then its inverse is diagonal matrix 1 by A, 1 by B, 1 by C, means we have to just take its reciprocal, that is 1 by omega 0 0 0 1 upon omega square 0 0 0 1 upon omega cube. And now we know that omega cube is nothing but equal to 1. Therefore, this 1 by omega can be written as omega cube upon omega, because 1 can be replaced as omega cube, that is omega square, and omega 1 upon omega square is nothing but omega cube upon omega square, that is nothing but omega. Hence this A inverse becomes this matrix 1 upon omega is nothing but omega square 0 0, this 0 omega 0 and 0 0 1 upon omega cube, and omega cube is 1, means 1 by 1 is nothing but 1, means it is omega square 0 0 0 omega 0 and 0 0 1. Therefore answer B is correct for question number 32. Now question number 33, it is theoretical question. If A and B are symmetric matrices of order n, then can A plus B is skew symmetric? No. A plus B is symmetric. Yes, must be symmetric. Means when A and B are symmetric, then A plus B is symmetric, means it's B is correct answer. Now question number 34. If A and B are skew symmetric matrices of order n, then A plus B is again a skew symmetric matrix, means answer A is correct answer. यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 34 में, if A and B are skew symmetric matrices, means addition of skew symmetric matrix is nothing but a skew symmetric matrix, means A is correct answer. Then 35, the matrix A is given there, matrix I is given, unit matrix 1 0 0 1, matrix A is given, the matrix 0 1 minus 1 0, and one matrix B is given, cos theta sin theta minus sin theta cos theta. Now if you multiply this I by cos theta, then cos theta into I will get cos theta 0 0 cos theta, and if you multiply this J with sin theta, then sin theta into J will get this matrix 0 sin theta minus sin theta 0. And now when we add these two matrices, addition of these two matrices means cos theta into I plus sin theta into J is nothing but matrix cos theta plus 0 is cos theta, 0 plus sin theta is sin theta, 0 minus sin theta is minus sin theta, and cos theta plus 0 is cos theta, and this is nothing but matrix B. Okay, means cos theta I plus sin theta J is your correct answer. Cos theta I cos theta plus J sin theta is your answer, means answer A is correct answer here. Okay, so the next question number 36. Question number 36, by the observation we can say that the matrix जो दिया है क्वेश्चन नंबर 36 में, मैट्रिक्स A is matrix 0 FG minus F0 H minus G minus H0. Observing this matrix, we can observe that each and every diagonal element is 0, and pairwise its elements Aij and Aji
they are with opposite sign, it means it says that this matrix is a skew symmetric matrix. It is a skew symmetric, means in 36 answer is skew symmetric, means D is your correct answer for question number 36. Next आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ. 37 भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 37 इसमें लिखा है if A is a square matrix of order n, then determinant of adjoint of A, it is a property that is determinant of A raised to n minus 2, and hence answer A is correct answer. This is nothing but the property of determinant of matrix. Remember that determinant of adjoint of A is determinant of A raised to n minus 2, which we have discussed in the theory part. ठीक है, चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ. देखिए क्वेश्चन नंबर 38. If A is a matrix Aij of order 2 by 2 such that Aij is equal to I plus j. It is very simple. If you write this matrix in full form, then it is A11, A12, A21, A22. Means when the order of matrix is 2 by 2, it must have 4 elements. And formula to find Aij is given I plus j. Means A11 is nothing but equal to 1 plus 1, that is 2. A12 is nothing but 1 plus 2, 3. A21 is nothing but 2 plus 1, 3. And A22 is nothing but 2 plus 2, 4. Hence we can say that A is this matrix 2, 3, 3, 4. Matrix 2, 3, 3, 4. Check this matrix 2, 3, 3, 4. It is in option A. Therefore option A is correct option. Now next 39 number. Question is, for how many values of x in the closed interval minus 4 comma minus 1 is the matrix 3 minus 1 plus x 2, 3 minus 1 x plus 2, x plus 3 minus 1 2 is singular. Is singular means determinant of this matrix is equal to 0. What is meant by singular matrix? If the value of determinant is 0, then we can say that it is singular matrix. Means we have to solve this determinant and we have to find the values of x, and we have to choose the values of x in the interval minus 4 to minus 1. What interval is given? X is belongs to the interval minus 4 to minus 1, closed interval. तो हम चलो इसको सॉल्व करेंगे. जैसे यहाँ लिखता है 3 3 और हम लिखेंगे R1 changes by operation R1 minus R2, and R1 changes by operation R2 minus R3. R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये आएगा डिटर्मिनेंट 3 minus 3 0. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा x. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस x. फिर 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा यहाँ पे माइनस x. माइनस 1 प्लस 1 ये आएगा 0. x प्लस 2 माइनस 2 इज x. Here it is x plus 3 minus 1 2 is equal to 0. तो चलो रो 1 और रो 2 में से x कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर इंटू दिस डिटर्मिनेंट. यहाँ पे रहेगा 0 1 minus 1 minus 1 0 1. This is x plus 3 minus 1 2 is nothing but equal to 0. तो x square into bracket हम इसे सॉल्व करेंगे. माइनस 1 into bracket ये 0 तो 0 बन जाएगा. माइनस 1 into bracket माइनस 2 माइनस x माइनस 3 और माइनस 1 into bracket 1 माइनस 0 is equal to 0. तो ये आएगा therefore x square into bracket 2 plus x plus 3 minus 1 is equal to 0. तो x square into bracket x plus 4 is equal to 0. तो x के दो वैल्यूज आएंगे, x is equal to 0 and x is equal to minus 4. Therefore you can say that x is equal to 0. It does not belongs to this interval minus 4 to minus 1, but x is equal to minus 4
it belongs to the interval -4 to -1, means how many values? Only one value of x which belongs to the interval -4 to -1, that is -4. ठीक है, क्योंकि 0 ये वैल्यू इस -4 टू -1 के इंटरवल में, -4 टू -1 ऐसा तो नहीं रहता, -1 इधर चाहिए, ठीक, हाँ ठीक है, -4 टू -1 इस इंटरवल में आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज -1। समझ में आ रहा है आपको? तो चलो इसको लिख लो और आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। Now read question number 40. If A and B are square matrices of the same order, then A plus B whole square is equal to, क्या given है? A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. Now we know that A plus B whole square, it is nothing but A square plus AB plus BA plus B square. According to the formula which we have studied for matrices, it is always A square plus AB plus BA plus B square plus B square. Now this A square get cancelled, B square get cancelled. Therefore we can say that AB plus BA is nothing but equal to this 2AB can be written as AB plus AB. Now this AB and AB get cancelled. Therefore we have here AB is equal to BA. ठीक है, तो देखिए AB is equal to BA कहां पे दिया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. If A, B, C are three square matrices such that A is equal to B plus C, यानी these two matrices are equal, therefore determinant of A is nothing but equal to determinant of B plus C, and here it is answer, determinant of B plus C is nothing but D, because we cannot separate the determinant in addition of matrices. Addition में हम इनको separate नहीं कर सकते, तो आपका D ऑप्शन करेक्ट होगा। Then question number 42. If A and B are two square matrices of the same order, three order का है, then पहला जो है ऑप्शन A into B whole dash is equal to A dash B dash. Now it is not possible, ये तो B dash A dash होता है, means this is wrong, ये इक्वल नहीं है। ऑप्शन B में AB is equal to 0 implies A is equal to 0 और B is equal to 0, तो हमने ये थियरी में देखा है कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। अगर आपको AB is equal to 0 दिया है तो हम लिख सकते हैं AB is equal to 0, यानी AB ये जीरो मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB ये जीरो होगा, जीरो मैट्रिक्स नहीं, जीरो होगा इसका। देयरफॉर हम using the properties of determinant we can say that determinant of A into determinant of B is equal to 0, therefore determinant of A is equal to 0 or determinant of B is equal to 0, means we can say that if AB is equal to 0, it implies determinant of A is equal to 0 or determinant of B is equal to 0, means here option D is correct, C is not correct। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि AB is equal to 0 matrix, it always implies that either the determinant of A or determinant of B is 0, because we can separate the determinant in the product of matrices। 43 number, look at this. In question number 43, A is a matrix given, A is equal to matrix 1 minus 1 1 0 2 minus 3 2 1 0, such that B is equal to adjoint of A and C is equal to 5A. Then we are going to find determinant of adjoint of B upon determinant of C is equal to। चलो चलते हैं, फाइंड करेंगे हम क्या होता है। तो पहले हम लेंगे B is given adjoint of A, तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा?
adjoint of B is nothing but adjoint of A. अब adjoint of A क्या होता है? ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू n माइनस 2 इंटू A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आता है देखते हैं, ठीक है। n की वैल्यू तो 3 है, यानी ये आएगा एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या आता है 1 इंटू ब्रैकेट 0 माइनस माइनस 3 यानी 0 प्लस 3 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 0 माइनस माइनस 6 इज 6 एंड प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 0 माइनस 4 इज माइनस 4। तो ये आएगा 3 प्लस 6 9 माइनस 4 इज 5। डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा 5, तो ये आएगा एडजॉइंट ऑफ B इज नथिंग बट इक्वल टू 5A। 5A यानी क्या मैट्रिक्स दिया है? C दिया है, यानी हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ B is nothing but C, therefore determinant of adjoint of B is nothing but equal to determinant of C, and therefore we can say that if they are equal, therefore determinant of adjoint of B upon determinant of C is nothing but equal to 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो D is its correct answer। D is correct answer because according to our formula we have adjoint of B and C are the same matrices, and when two matrices are same, the values of their determinant is also same, and therefore their ratio is 1। ठीक है, तो ये हो गया explanation for question number 43। आगे चलेंगे question number 44 की तरफ। क्या लिखा है? if In is identity matrix of order n, then In inverse। तो आपको पता है question number 44 के लिए In होल इनवर्स यानी यूनिट मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिट मैट्रिक्स ही होता है, यानी वही सेम मैट्रिक्स होता है। तो इसका आंसर आएगा बी करेक्ट, बी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 45 नंबर देखिए। 45 नंबर में यहां पर सेम क्वेश्चन जो डिस्कस किया है हमने क्वेश्चन नंबर 42 में, वही क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 45, if A and B are square matrices such that AB is equal to 0, then अगर AB is equal to 0 है तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ B is equal to 0 एक। और थ्योरी में हमने देखा था कि अगर AB is equal to 0 है does not mean A is equal to 0 और B is equal to 0 मैट्रिक्स, यानी AB is equal to 0 होने के लिए A या B इनको 0 मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, यानी यहाँ पे आपको आंसर रहेगा इट इज नॉट नेसेसरी दैट A is equal to 0 और B is equal to 0, यानी ऑप्शन B और ऑप्शन A बोथ आर करेक्ट, यानी इस 45 नंबर के लिए D ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 45 के लिए D ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें दिया है वैल्यू ऑफ A इन ऑर्डर दैट द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। 46 में जो मैट्रिक्स दिया है 2 3 5 1 0 2 0 1 -1, ये सिंगुलर है, यानी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इसको हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे A है तो इसको हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो 2 इंटू ब्रैकेट -a -2 -3 into bracket -1 plus 5 into bracket 1 is equal to 0। तो -2a -4 plus 3 plus 5 is equal to 0। तो 2a is equal to आएगा 4, a is equal to आएगा 2। The value of a is 2। Next question number 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है देखिए, if A is a matrix given 3 4 2 3 and B is a matrix given -2 -2 0 -1, then A plus B whole inverse is equal। A plus B का इनवर्स निकालना है, यानी यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है इसको सेपरेट करने के लिए।
ए प्लस बी करना ही पड़ेगा आपको। ए प्लस बी करो तो 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 0 2, 3 माइनस 1 2, और इसका निकालना है हमें इनवर्स, तो ये आएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट यानी 2 माइनस 4 into this matrix, interchange the diagonal elements, change the signs of non-diagonal elements. तो ये आएगा 1 by 2 into this matrix minus 2 2 2 minus 1। जैसे कि ये माइनस 2 आएगा तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया, तो आप आंसर देख लीजिए इसका। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, ये एलिमेंट सेम है, यानी हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें ऑप्शन ए कभी करेक्ट नहीं हो सकता, ये पहले याद रखिए कि ए प्लस बी होल इनवर्स, ए प्लस बी होल इनवर्स नेवर बी इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। एडिशन में हम इनवर्स को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे 48 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है द सम ऑफ द मैट्रिक्स 2 माइनस 3 5 माइनस 7 एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इसका अगर नाम ए दिया तो हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस ए इनवर्स, ये कितना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और ये मैट्रिक्स इनकी हमें एडिशन फाइंड करनी है। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 1। ए इनवर्स इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी ए इनवर्स बन गया माइनस 7 3 माइनस 5 2, और अब अगर हम ए प्लस ए इनवर्स निकालते हैं तो कितना आएगा 2 माइनस 7 दैट इज माइनस 5, minus 3 plus 3 is 0, 5 minus 5 यानी 0, और minus 7 plus 2 is minus 5, means it is minus 5 0 0 minus 5 that is minus 5। अगर कॉमन निकालते हैं 1 0 0 1 which is nothing but unit matrix, means your answer is minus 5i, ठीक है। तो आंसर आएगा D, D is your correct option। Next 49 number, look at it, question number 49। if A is a matrix, A मैट्रिक्स दिया है रो मैट्रिक्स AB, B मैट्रिक्स दिया है रो मैट्रिक्स माइनस B माइनस A, और C मैट्रिक्स दिया है कॉलम मैट्रिक्स A माइनस A, then the correct statement is, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है हमें। उसमें ऑप्शन A है A is equal to माइनस B। क्या हम इसमें से माइनस कॉमन निकालने के बाद ए हमें मिलता है? नहीं, मींस इट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो चेक करेंगे ए प्लस बी क्या आता है। ए प्लस बी ये मैट्रिक्स आएगा ए माइनस बी और बी माइनस बी, और ए माइनस बी चेक करेंगे ए माइनस बी, यानी इसमें से इसको माइनस करना है तो ये आएगा ए प्लस बी बी प्लस सी। क्या ये इक्वल है? नहीं है, यानी ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी चेक करेंगे। चेक करना है हमें, ए इंटू सी करेंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो क्या आता है? ए सी इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, और बी सी क्या आता है देखेंगे, बी इंटू सी करो, माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आता है। सी ए इज इक्वल टू सी बी हम करना चाहेंगे तो इसकी ऑर्डर है 2/1 और इसकी ऑर्डर है 1/2, तो देखेंगे हम सी ए करके क्या होता है नंबर डी। सी ए इज इक्वल टू सी बी दिया है, तो सी ए क्या आता है देखिए, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम इज ए स्क्वायर, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम इज ए बी, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम इज माइनस ए स्क्वायर, और सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम इज माइनस ए बी।
और सी भी निकालते हैं। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम इज माइनस ए बी, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम इज माइनस ए स्क्वायर, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम इज ए बी, और सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम इज ए स्क्वायर. Are these two are equal? No, they are not equal. Means option D is wrong. Means only option C is correct option. AC और BC ये प्रोडक्ट कैसे आते हैं? सेम आते हैं. इसके आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 50 के लिए. क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है if a dash is equal to minus a, a dash is equal to minus a, a क्या लिखता है कि a is skew symmetric matrix. ये प्रॉपर्टी है, जब a dash is equal to a आता है तो a क्या रहता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड a is a 3x3 मैट्रिक्स, यानी इसकी ऑर्डर क्या है? ऑड ऑर्डर है. अब जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का आता है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि determinant of skew symmetric matrix of odd order is always 0. Next point, next question, question number 51. अगर हमें ऐसा दिया है 51, for 2x2 matrices A, B and I, if A plus B is equal to I and 2A minus 2B is equal to I, then A is equal to, यानी मैट्रिक्स इक्वेशन दिए. तो चलो इस क्वेश्चन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी हमें मिलेगा 2a plus 2b is equal to 2i, और इनकी एडिशन करो तो क्या मिलेगा? 4a is equal to, ये 2b और 2b कैंसिल हो जाएगा और is equal to आएगा 3i, तो a आएगा 3/4i, 3/4i यानी 3/4 0 0 3/4. तो चेक कर लीजिए ऐसा आंसर कहां पर है? 3/4 0 0 3/4. दिस इज इन ऑप्शन सी. देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 51 सी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो चलो इसको नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 51 हैज सी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में ये जो मैट्रिक्स है दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I. आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस 2a, यानी ये आएगा I स्क्वायर प्लस 2i. I स्क्वायर यानी होता है I प्लस 2i, यानी ये हो जाएगा 3i, बट I इज नथिंग बट a, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज 3a. तो आंसर आएगा ऑप्शन ए. इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. 53 में क्या दिया है? A is matrix given 0 1 0 0 0 1 1 minus 1 0, और हमें निकालना है a क्यूब प्लस a इज इक्वल टू कितना आता है? तो चलो a क्यूब प्लस a निकालने के लिए पहले a स्क्वायर निकाल. ये 0 1 0 0 0 1 1 minus 1 1, sorry 1 minus 1 0 into this matrix 0 1 0 0 0 1 1 minus 1 0. चलो इनका प्रोडक्ट लेंगे. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी आएगा 0. First row into second column, 0 plus 0 into 0 is 0. First row into third column, 0 plus 1 plus 0 यानी 1. Second row into first column, 0 plus 0 plus 1 is 1. 0 plus 0 plus minus 1 is minus 1. 0 plus 0 plus 0 is 0. And third row into first column, 0 plus 0 plus 0 is 0. 1 minus 0 plus 0 is 1. 0 minus 1, it is minus 1. ये a स्क्वायर आ गया. a क्यूब निकालेंगे आगे. a क्यूब इज इक्वल टू आएगा a स्क्वायर इंटू a. अब a स्क्वायर क्या आया है?
ए स्क्वायर आया है 0 0 1, 1 माइनस 1 0 और 0 1 माइनस 1। इसमें केयरफुली करना बहुत जरूरी है। ये 0 1 0, 0 0 1 और 1 माइनस 1 0 इज इक्वल, ले लेंगे प्रोडक्ट इनका। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट वन, 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी आएगा 1, 0 प्लस 0 माइनस 1 यानी आएगा माइनस 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी आएगा 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी आएगा 0, 1 0 0 यानी 1, 0 minus 1 0 is minus 1, 0 0 minus 1 is minus 1, 0 0 1 is 1 और 0 1 0 is 1। ये आ गए आपकी ए क्यूब। तो यहां पे आपके सामने ए है और ये ए क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस ए क्या आता है देखिए, 0 प्लस 1 ये आएगा 1, 1 प्लस माइनस 1 ये आएगा 0, 0 प्लस 0 ये आएगा 0, 0 प्लस 0 ये आएगा 0, 0 प्लस 1 ये आएगा 1, 1 माइनस 1 ये 0, 1 माइनस 1 ये 0, माइनस 1 प्लस 1 ये 0 और 0 प्लस 1 ये 1। तो ये क्या हो गया, इट इज नथिंग बट यूनिट मैट्रिक्स आई। तो ए क्यू प्लस ए इज इक्वल टू आई। इसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ए दिया है तो ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर निकालने के बाद ए क्यूब निकालिए और ए क्यूब प्लस ए निकालिए और फाइंड कीजिए वो क्या आता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 क्या दिखा है, 54 में ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज अ मैट्रिक्स I 0 0 I, तो a raised to 4n इज इक्वल टू क्या आएगा, I raised to 4n 0 0 I raised to 4n, बिकॉज a इज अ डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में रेस्ट टू n करते हैं तो ये डायगोनल एलिमेंट्स का भी उतना ही पावर होता है। और हमें पता है I ये इमेजिनरी यूनिट है, आयोटा जिसे हम बोलते हैं, और आयोटा का रेस्ट टू 4n यानी आयोटा का कभी भी पावर मल्टीपल ऑफ 4 है तो हमेशा वो 1 होता है। तो ये आएगा 1001 मींस a रेस्ट टू 4n इज नथिंग बट इक्वल टू i, यूनिट मैट्रिक्स i आएगा, यानी इसका जो आंसर है दैट इज नथिंग बट डी ऑप्शन आएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 नंबर में, if A and B are two square matrices such that B is equal to minus A inverse into B into A, then आपको निकालना है A plus B होल स्क्वायर इज इक्वल। अब देखिए जो दिया है B इज इक्वल टू माइनस A इनवर्स इंटू A, अगर हम इसको प्री मल्टीप्लाई करते हैं A से, प्री मल्टीप्लाई बाय A, तो क्या मिलेगा, A इंटू बी इज इक्वल टू A इंटू A इनवर्स इंटू B इंटू A। तो A इंटू A इनवर्स क्या है, I, यानी ये AB इज इक्वल टू आएगा माइनस I इंटू बी A। I इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ, मींस AB इज इक्वल टू माइनस BA और AB इज इक्वल टू माइनस BA, यानी AB प्लस BA इज इक्वल टू आ गया 0। यानी जो गिवन टर्म है उसको हमने सिंप्लीफाई किया। नाउ हमें पता है A प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, इट इज नथिंग बट A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर। तो AB प्लस BA तो 0 दिया है, तो ये आएगा A स्क्वायर प्लस 0 प्लस B स्क्वायर, मींस इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कहां पे जुड़िए, इट इज नथिंग बट ऑप्शन बी। तो 55 का आंसर आएगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहा है,
इसको प्रॉपरली रीड करना बहुत जरूरी है। द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, कोई भी मैट्रिक्स ए है, जैसे समझो A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33, ऐसा एक मैट्रिक्स है। तो कहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रे ऑफ डिटरमिनेंट ए विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द सेम रो, यानी किसी भी तीन एलिमेंट को, तीन चार जो भी है, आप अगर A11, A12 और A13 को इनके ही करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। A11 का कोफैक्टर C11, A12 का कोफैक्टर C12, A13 का कोफैक्टर C13, और इनकी अगर एडिशन करते हैं तो हमें मिलने वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए। और इससे रिलेटेड और एक बात आप हमेशा याद रखिए जो आपने डिटरमिनेंट में सीखी है कि अगर वो कोफैक्टर छोड़ के किसी और दूसरे कॉलम के अगर कोफैक्टर से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी एडिशन हमेशा जीरो आती है। यानी फॉर एग्जांपल ये तो आंसर आपका यहां पे आ गया, आंसर ए इज करेक्ट आंसर, बट रिमेंबर दैट अगर A11, A12 और A13 इनको अगर हम C21, C22 और C23 से मल्टीप्लाई करते हैं और इनकी एडिशन करते हैं तो आने वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, यानी किसी दूसरे रो। यानी यहां पे आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए। 57 में क्या लिखा है, इफ A is a matrix Aij of order 4x4, ये 4x4 का मैट्रिक्स दिया है, यानी इसमें आपको एक रो और एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, A14 इधर और A41 इधर, ऐसा क्या कहा है, as Cij is cofactor of element Aij, then determinant of A is the expression in the determinant of A, then the expression A11 into C11, A12 C12, A13 C13, A14 C14, यानी पहले रो के सभी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो आने वाला मैट्रिक्स होगा, आने वाला आंसर होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 58, करेक्ट, चूज करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 1, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज इट ट्रू? नो, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर, स्केलर आइडेंटिटी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन बी, ए तो करेक्ट नहीं है। बी, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नेवर, हर एक डायगोनल मैट्रिक्स से आइडेंटिटी नहीं हो सकता क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए उसको डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 होना जरूरी है। नंबर सी, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, यस, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो आपका 58 का आंसर आएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, A is a diagonal matrix size 3 by 3 diagonal D1, D2, D3, then A raised to n is equal to, अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन, डायगोनल एलिमेंट्स अगर D1, D2, D3 है, A is a diagonal matrix D1, D2, D3, then इसका A raised to n किया तो क्या आएगा, डायगोनल D1 raised to n, D2 raised to n, D3 raised to n, ये आता है इसका डायगोनल मैट्रिक्स। तो आंसर आएगा सी, सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 60 नंबर, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इट इज गिवन दैट a into a dash is equal to I, then A is orthogonal matrix। 59 नंबर, ये टाइप्स में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो a into a dash is equal to I, it gives us, it is always orthogonal matrix। इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, 61 में आपको मैट्रिक्स ए दिया है 2 0 -1 3 1 2 -1 1 2, देन आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, सिर्फ हमें यहां पे डिटरमिनेंट नहीं निकालना, बाकी प्रोसेस टोटल इनवर्स के जैसे करनी। चलो फर्स्ट रो कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम,
तो 2 माइनस 2 यहां पे क्या आएगा 0। देखो 0 एलिमेंट वाले कितने हैं, सभी है। देन सेकंड एलिमेंट ले लो, इसका रो और कॉलम छोड़ दो। 6 प्लस 2 8, यहां पे आएगा -8। साइन चेंज करना है, साइन चेंज। 6 माइनस -2 यानी 6 प्लस 2 8। तो देखिए यहां पे -8 वाले कितने हैं, डी ऑप्शन कट गया देखिए। अब थर्ड एलिमेंट के लिए जाए, इसको और इसको छोड़ दो। 3 प्लस 1 4, 0 -8 4, 0 -8 4। फिर इस एलिमेंट के लिए रो और कॉलम छोड़ दीजिए, इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए। 0 प्लस 1 1, साइन चेंज करके आएगा -1। -1 कहां दिखता है देखो, सभी तरफ है। फिर दूसरा एलिमेंट लीजिए, इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, रो और कॉलम छोड़ दीजिए। तो 4 - 1 3, यहां पे 3 आएगा। इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, नेक्स्ट एलिमेंट, इस एलिमेंट के लिए इसका रो और कॉलम। तो 2 - 0 2, साइन चेंज करके आएगा -2। देखो दूसरा कॉलम -1 3 -2, -1 3 -2। अभी भी ऑप्शन ए और सी कंपटीशन में है। चलो नेक्स्ट कॉलम रो के लिए जाते हैं, इसका रो और कॉलम छोड़ दो। 0 प्लस 1 1, यहां पे आएगा 1। देखिए नेक्स्ट ये एलिमेंट, इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, ये आएगा 4 प्लस 3 7, यहां पे आएगा 7। और लास्ट एलिमेंट, इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए। 2 - 0 is 2, यहां पे -7 आना चाहिए, क्योंकि ये एलिमेंट है, इसके लिए हमें कोफैक्टर की साइन चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, ये जो एलिमेंट है यानी इसके लिए इसका रो और कॉलम छोड़ के यहां पे आया था 4 -3 यानी 7, साइन चेंज करके -7। तो चेक कर लीजिए, ये यहां पे एक एलिमेंट और एक बार चेक कर लेते हैं, ये वाला एलिमेंट, इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए। 2 - 0 is 2, साइन चेंज करके -2, राइट है। तो चेक कर लीजिए, यहां पे 0 - 8 0 - 8 4 -1 3 -2 और 1 - 7 2, 1 - 7 2। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम एडजॉइंट निकालते हैं। आप इसके जगह पे और एक प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, जैसे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। चेक करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i आता है क्या। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड कर सकते हैं। गिवन मैट्रिक्स से हर एक ऑप्शंस का प्रोडक्ट लीजिए और डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i आ गया तो आपका आंसर आ गया समझो। नेक्स्ट 62 नंबर, the element in the third row, first row and third column of the inverse। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको संभलना जरूरी है। 1 2 -3 0 1 2 और 0 0 1। क्या निकालना है आपको, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब A इनवर्स जब आप निकाल रहे हो तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये याद रखना है। यानी 1 ये डिटरमिनेंट तो है, यहां पे जो मैट्रिक्स आएगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यानी ये प्लेस का एलिमेंट आपको ढूंढना है। इसके लिए ये वाली चीज बहुत जरूरी है। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, देखिए ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। 1 इंटू 1 इंटू 1। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये जो कोफैक्टर होता है वो किसका होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, ये कोफैक्टर होता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का, यानी इसका कोफैक्टर जाके यहां पे बैठने वाला है। नोट कर लीजिए, इसका कोफैक्टर जाके वहां बैठने वाला है। तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो यहां पे बचेंगे 4 एलिमेंट। तो 4 प्लस 3 ये आएगा 7 यहां। तो आपका आंसर आएगा 7। याद रखिए, अगर ये मैट्रिक्स ट्रायंगुलर नहीं होता था तो इसका हमें इन डिटरमिनेंट निकालना बहुत जरूरी है। इसका पहले डिटरमिनेंट निकालो, ये यहां पे आएगा और दिस वन इनटू ये, दैट इज योर द एलिमेंट ऑफ द इनवर्स।
तो यहां पे तो आंसर 7 आएगा। तो देख लीजिए 7 कहां पर है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। 62 का आंसर आएगा डी। आगे चलेंगे।